My dear students, in my previous video lectures already I have given the idea of electric potential due to a point charge, and also I have already calculated the value of electric potential due to an electric dipole system at some external point for which the polar coordinates are p r theta. प्यारे बच्चों, पीछे वाले वीडियो कार्यक्रम में जैसा कि हमने तुम लोगों को बताया था, एक पॉइंट चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूला डिराइव किया था, दैट इज v इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। उसी तरह से हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते एक ऐसे पॉइंट जिसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पी आर थीटा के बराबर होती है, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था, एंड द फॉर्मूला वाज v इक्वल्स टू p cos थीटा बाई 2πε0 इंटू आर स्क्वायर। नाउ in this video program I want to discuss to you people about the calculation of electric potential due to an assembly of n number of discrete charges. So let us see how will you do this task. Now see here, let there be an observatory point O, and with respect to this observatory point O, let there be a point charge Q1, and this point charge Q1 is located at a distance R1. Similarly, Q2, which is located at a distance of R2, Q3, it is located at a distance R3, Q4, it is located at a distance of R4. Exactly proceeding in the similar way, the nth charge Qn is located at a distance Rn from the point O. I mean to say that all the charges Q1, Q2, Q3, Q4, dot dot dot, so on Qn, all these are the point charges, and all these charges are forming an assembly, a system. So we are interested to calculate the value of electric potential due to this assembly of charges at the point O. As previously I have discussed to you that electric potential is a scalar quantity. So here we will apply the superposition principle for इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात चूंकि हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और वैसी स्थिति में अगर ये जो n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, इन तमाम चार्जेस के चलते इस पॉइंट O पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम इंडिविजुअल चार्जेस के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जब हम किसी एक चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वैसी स्थिति में हम ये फॉरगेट कर जाते हैं कि उसके नियर बाई अन्य भी कोई चार्ज रखा हुआ है। सो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, लेट अस नाउ ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। नाउ सी हियर, लेट V1 be the electric potential due to the charge Q1 at the point O. So we can write V1 is equal to 1/4πε0, charge is Q1 and the distance is R1, so we will write R1. Similarly, the second charge Q2, and for this charge let potential is V2, so we can write V2 equals to
1/4πε0 into Q2 divided by R2. Exactly proceeding in the similar way, we will find the value of Vn. What is Vn? Vn is the value of electric potential due to this charge Qn at the point O. So this Vn can be given as 1/4πε0 into Qn divided by Rn. Now, to calculate the potential due to this assembly of charges, we will sum up all these individual values of electric potential. So, if V be the total potential or V be the potential due to the assembly of charges, then we can write V equals to V1 plus V2 plus so on plus Vn. And this can be written as, see here, if we will add all this 1/4πε0, it will be common. So we will write 1/4πε0 into Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus so on plus Qn divided by Rn. This relation in the form of summation can be written as 1/4πε0 summation Qi divided by Ri, where I is running from 1 to n. So this is the value of electric potential due to assembly of charges. Now, our next topic, it is the equipotential surface. My dear students, अब इसके बाद जिसके बारे में तुम लोगों को हम आइडिया देना चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि तुम जानते हो, इक्वी का मतलब क्या होता है भाई? बराबर। पोटेंशियल का मतलब तुम समझ गए हो, विभव, और सरफेस यानी तल अथवा सतह। अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं समविभवी सतह या तल। ऐसे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कहते हैं एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is defined as that surface at any point of which the value of electric potential comes same। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सतह होता है जिसके किसी भी पॉइंट को ले तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वह बराबर आती है, यानी सेम आती है, यानी कांस्टेंट आती है। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम आए। उदाहरण के लिए मान लिया जाता है कि एक हम सॉलिड मेटेलिक स्फीयर लेते हैं और इस मेटेलिक स्फीयर का मान लिया जाता है सेंटर ओ, और इस मेटेलिक स्फीयर पर हम एक +q कूलम का चार्ज देते हैं। अब ये +q का कूलम का जो चार्ज इस मेटेलिक स्फीयर पर देते हैं,
तो ये मेटेलिक स्फीयर इस तरह से बिहेव करता है मानो टोटल ये प्लस क्यू चार्ज जो है इसके सेंटर पर लोकेटेड है। अगर इस मेटेलिक स्फीयर की रेडियस हम मान लेते हैं r है, तो इसके सतह पर हम चाहे कोई भी पॉइंट लें, इस पर बहुत सारे ये सब पॉइंट्स तुम देख सकते हो। दीज आर सो मेनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटेलिक स्फीयर। अगर हर पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो v और ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटा r, क्योंकि हर पॉइंट के लिए चार्ज की वैल्यू तो q ही होगी और हर पॉइंट के लिए ये पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी r ही होगी। अर्थात चूंकि इस सतह यह जो मेटेलिक स्फीयर है जो कि चार्ज है, इसका जो सतह है यह सतह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल हो सकता है, होगा ही। तो ऐसे सतह जिसके हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, ऐसे सतह को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यह एक पॉइंट चार्ज के लिए, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के लिए खींचे जाते हैं। हम एक पॉइंट चार्ज के चलते इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के चलते जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम खींचते हैं वह कुछ नहीं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस। ये तुम देख सकते हो, हमने ऐसे ऐसे ये गोल सर्किल लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस हैं। और ये कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अगर तुम फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहते हो तो तुम जानते हो ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होता है। तुम देख सकते हो जितने भी हमने ये लाइंस खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को खींच रहे हैं। और ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से हैं? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हैं। इस तरह से ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दी फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरह से अगर ये चार्ज माइनस क्यू होता तो बिल्कुल यही शेप होता, लेकिन ये साइन ऑफ एरो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता। और इस तरह से तुमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के चलते इस तरह से, उसी तरह से पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा तो साइन ऑफ एरो इनवर्ड डायरेक्शन में देना, इस तरह से किया जा सकता है। अब हम ये देखना चाहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस शोइंग द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात तुम ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस को खींचो जो कि ये दर्शाता है कि उस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किए हुए है। कैसे हम खींचेंगे? देख सकते हो, हम इस तरह का ये फिगर्स बनाते हैं। ये अब इसमें हम थोड़ा फील्ड लाइंस को दिखाते हैं। और जो फील्ड लाइंस होते हैं तुम देख सकते हो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन इस तरह से गुजरते हैं। ये फील्ड लाइंस दिखाते समय हमें से ध्यान देना है
स्ट्रेट लाइन हो, यूनिडायरेक्शनल हो, इक्वी स्पेस्ड हो, इक्वी सेगमेंट यानी सारे लाइन की लेंथ जो हो वह क्या हो, इक्वल हो। इस तरह से यदि हम फील्ड लाइंस को दर्शाते हैं तो ये जो है एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये बताता है कि इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किए हुए हैं। My dear students, we now want to deal to you people about the properties of equipotential surfaces. यानी अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना चाहते हैं। तो लेट अस नाउ स्टार्ट टू राइट all the properties of equipotential surface. The first property, it tells that electric field vector E always acts perpendicular to the surface at a given point. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बालक कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को अगर हम लें तो इस पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, यह जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के डायरेक्शन को देगा। उसी तरह से इस पर स्थित कोई भी पॉइंट ले, हर पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उसका डायरेक्शन देगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, it tells that the work done in moving a test charge from one point to the other point is 0। कहता है कि यदि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस हो और उस सरफेस के अक्रॉस अगर एक टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाया जाए तो ऐसी स्थिति में किया गया वर्क 0 होता है। मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर एक पॉइंट हम ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी लेते हैं, और इस पॉइंट एक टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं और इसको पॉइंट ए से बी की ओर मूव कराते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB। चूंकि VA और VB बराबर है तो PD 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और चूंकि वर्क बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई चार्ज होता है, इसलिए वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। नाउ the third property, it tells that two equipotential surfaces do not intersect to each other at a common
पॉइंट कहता है कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछा जाता है, व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट, गिव रीजन। द आंसर इज दैट if two equipotential surfaces will intersect to each other at a common point, then at the point of intersection there will be two different values of electric potential. Now this fact can be created in your mind. This is a general idea which can be created in your mind, that if there be a single charge, how it is possible that there will be two different values of electric potential at a given point. ये सामान्य अनुभव की बात है। इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि अगर एक चार्ज हो और उस चार्ज के चलते कोई पॉइंट हो जहां पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि ये संभव नहीं है, इसीलिए यह भी संभव नहीं है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। सो आई हैव डिस्कस्ड टू यू द थ्री प्रॉपर्टीज एंड दैट इज द एंड of today video program. Okay, thanks.